Good morning, student. This is the second and last video of chapter gravitation. In this video, we are going to discuss about free fall and acceleration due to gravity on free falling object, weight and mass. Okay. So let us start with free fall. Free fall, that is concept of acceleration due to gravity. हम देखते हैं all object falling towards earth under the action of gravitational force of earth alone are said to be free fall. जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल पुल के कारण गिरता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है. ओके. वाइल falling freely there is no change in direction of motion of object, but the constant gravitational pull by earth on that object, the magnitude of velocity of object going on increasing. जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप बिल्डिंग से छोड़ते हैं तो वो वहाँ जब छोड़ेंगे तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा, उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी और अर्थ तक आते आते उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. ओके. अर्थ के सरफेस तक आते आते सो वेलोसिटी विल बी changes, and if velocity change in velocity with respect to time is known as acceleration. So falling object show acceleration. It means acceleration is produced in falling object due to the gravitational pull of earth. So acceleration due to the gravity g, acceleration produced in a body in free falling due to the gravitational force of attraction is known as acceleration due to gravity. ये अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को खींचता है, इसके कारण उसमें स्पीड बढ़ जाता है. एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल g, एंड SI यूनिट ऑफ g will be same as acceleration, simple acceleration. It is both are same. Okay. So it is meter per second square. Okay. Next. So we know that force is the product of mass of that object as well as acceleration. So according to the second law of motion, suppose let an object with mass m freely falling under gravitational pull of earth experience acceleration due to the gravity. Show force of attraction या gravitational force F will be this much. F is equal to mc. यहाँ F इक्वल टू एम ए लिखते हैं, ए की जगह हम जी लिखेंगे बिकॉज एक्सेलरेशन इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जी. सिमिलरली वी आल्सो नो दैट according to the universal law of gravitation, F is equal to the capital G multiplied by capital M and small m. Okay. The capital M is the mass of earth and small m is the mass of object. This is the here. This is the picture. This is the earth and mass of earth is capital M. This is the radius of earth. Okay. Capital R. And this is the small object which will be free falling. Okay. तो having mass m, object का mass m है, small m. So force between these two is that much. Okay. Like this. यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था देखिए आप, F is equal to G, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिल रहा है, वी विल गेट mg is equal to, this is also a force and it is g, capital G multiplied by small m and capital M divided by d square. It is distance between these object and center of the earth. अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को ही d दिखाया गया है. ओके. सो m विल कैंसिल दिस m, ये m दोनों कैंसिल हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट. तो g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G डिवाइड बाई कैपिटल M. कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड d स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर. ओके. दिस इज द थर्ड इक्वेशन where m, capital M is mass of earth and capital R is the radius of earth. This is the radius of earth. Okay. So here g is independent of the mass of m. Is m
इस फार्मूले में m है ही नहीं। तो वैल्यू ऑफ g या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट भारी है, हल्का है, खोखला है, हैवी है, या किसी तरह का ऑब्जेक्ट है, वो सेम स्पीड के साथ गिरेगा। जैसे बताते हैं आपको, ये एक बार गैलीलियो ने पीसा के जो लीनिंग टावर है वहाँ से बैठ करके बड़े हैवी ऑब्जेक्ट और छोटे ऑब्जेक्ट जो हल्के होते हैं उनको एक साथ गिराया, और दोनों एक ही साथ अर्थ को हिट करते हैं। इसका मतलब है कि उनके मास पर डिपेंड नहीं करता। ओके, मास जो स्पीड से, जिस स्पीड से गिर रहे हैं, दोनों बराबर स्पीड से गिरेंगे। ओके, तो d इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। सो लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लीजिए ऑब्जेक्ट सरफेस से रखा हुआ है, डिस्टेंस d जो है अब वो r के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस रेडियस के बराबर। नाउ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द r, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। देन व्हाट विल हैपन, फार्मूला विल बिकम्स g is equal to this much. Okay, here value of g is 9.8 meter per second square, okay, on the earth या near the surface of earth. Okay, so value of g, ये g की वैल्यू acceleration due to gravity, it is not same. Okay, it varies, as we know that earth is not a complete sphere, it is a लाइक दिस। अर्थ का जो है ये कुछ इस तरह का होता है, स्फेरिकल नहीं है कंप्लीट। ये मान लीजिए पोल है P और ये है सपोज करिए इक्वेटर E, तो इक्वेटर का डिस्टेंस जो होगा, रेडियस, वो ज़्यादा होगा। सो रेडियस ऑफ इक्वेटर E इज़ ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, दैट इज़ वाई G की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी। वैल्यू ऑफ G विल बी ग्रेटर। ओके, देन वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर, इक्वेटर पर g की वैल्यू कम होगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा वो हल्का होता जाएगा। ओके, या वैल्यू कम होती जाएगी इसलिए। ठीक है, पोल पर g की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और इक्वेटर पर कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे, एक बार और सोच लीजिए, मान लीजिए ये अर्थ है, दिस इज द पोल एंड दिस इज द इक्वेटर, और पोल पर g की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और इक्वेटर पर कम होता है। जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, वैल्यू ऑफ g विल बी डिक्रीजिंग। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, अगर सरफेस से हम नीचे भी जाएंगे तो g की वैल्यू कम होती है। मतलब सरफेस पर g की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सरफेस से ऊपर जाएंगे तो कम होगा, नीचे भी आएंगे तो भी कम होगा। एंड अगर हम पोल से धीरे धीरे खसकते जाएं इधर इक्वेटर की तरफ तो g की वैल्यू कम होगी। ओके, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल विल बी लेस, दैट इज वाई g इज मोर देन ओके g एट इक्वेटर। ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ये तो हमने बताया था कि क्योंकि फार्मूला g इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइड बाई R हो रहा है। इसका मतलब है, या g जो भी रख लीजिए, d स्क्वायर लिख लीजिए, तो यहाँ पर m स्मॉल नहीं है, दैट इज वाई वैल्यू ऑफ g डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो मास, चाहे कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई पेपर है, अगर पेपर को भी आप गिराएं और 1 किलो का वेट को भी एक वैक्यूम पाइप में गिराएं जहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस ना हो, तो वो दोनों एक ही साथ गिरेंगे। पेपर भी उसी समय टच करेगा जितना कि 1 kg का वेट, लोहे का वेट, वो भी एक ही समय हिट करेगा ज़मीन को। ठीक है, नाउ दिस हियर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी। अब देखिए, ये आपने हमको न्यूटन के 3 लॉ पढ़े हैं आपने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो a को हम g से रिप्लेस करेंगे, s को हम h से रिप्लेस करेंगे, और a को हम यहाँ g से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल हो रहा है या ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर भेज रहे हैं तो
So formula of these three becomes this. Okay, h is equal to ut plus half gt square and v square minus u square is equal to 2gs. g को हम a को g से रिप्लेस करेंगे और s को h से रिप्लेस करेंगे. ओके, और अगर एक चीज़ और ध्यान रखें, वैल्यू ऑफ g will be positive when object is falling towards gravitation force. अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो g की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर भेज रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वैल्यू ऑफ g विल बी इन निगेटिव फॉर्म. ये निगेटिव फॉर्म में होगा. जब अगर आप मान लीजिए कोई गेंद को ऊपर उछाल रहे हैं तो g जो होगा वो एक्सलेरेशन टू ग्रेविटी विल बी -9.8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके, ये सब ध्यान रखना होगा. इनिशियल वेलोसिटी, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा रहे हैं तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी विल बी u विल बी 0. ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, एक क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ रूफ. एक स्टोन को ऊपर रूफ छत से गिराया जा रहा है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 4.9 मीटर. कितना समय लेता है. हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ द दैट फॉल. हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ 7.9 मीटर. व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड एंड सेकेंड एंड 2 सेकेंड. ओके, सो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 0, क्योंकि स्टोन को आप ऊपर से गिरा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ओके, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच इट इज 4.9 मीटर एंड जी हैज़ बीन गिवन इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट, अब देखिए ये पहला का आंसर है. तो वी नो दैट h इज ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसको हम लिखते थे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को तो हम इस तरह लिखेंगे. ओके, सो दिस मच वैल्यू पुट करिए तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू द 1 सेकेंड. ओके, नेक्स्ट, फाइनल वेलोसिटी v इट इज 0. कब जाकर के टच कर रहा है जमीन पर, एट अ टाइम 1 सेकेंड मान लीजिए, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. हियर u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0. अब g की वैल्यू है 9.8 और t मिला हुआ है 1 सेकेंड, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट, लेट v द फाइनल वेलोसिटी व्हेन h हाइट अब 7.9 मीटर नीचे आ जा रहा है, तब आपको देखना है टाइम. तो वैल्यू ऑफ देख v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs, इसका वैल्यू करेंगे तो v टोटल फाइनल वेलोसिटी विल बी 12.4 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए d, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी रिमेन द सेम एट द ऑल टाइम. क्योंकि ये g कांस्टेंट हो रहा है, ये मास पर डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट या एनी अदर. ओके, सो नेक्स्ट अब देखते हैं मास. व्हाट इज द मास. तो मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन दैट बॉडी एंड आल्सो इक्वल टू द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज आल्सो मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. इनर्शिया के बराबर भी होता है ये. इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर, इट्स इनर्शिया विल आल्सो बी मोर. मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होता है. ओके, रिमेन द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ या मून या इवन आउटर स्पेस. वो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मेरा मास 70 kg है तो अर्थ पर भी 70 kg ही होगा और मून पर भी 70 kg होगा, मार्स पर भी 70 kg ही होगा. ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट होता है. ओके, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. मास ऑफ बॉडी कैन बी मेजर बाय बीम बैलेंस. बीम बैलेंस क्या है, एक ऐसा बैलेंस जो आप सब्जी लेने जाते हैं, तराजू देखते हैं, इस तरह के बैलेंस से इसको आप तौल सकते हैं मास.
ठीक है, नॉट स्प्रिंग बैलेंस, दिस इज बीम बैलेंस। ओके, अब वेट क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट इट। किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वही उसका वेट है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो W is equal to the m into g, where g is acceleration due to gravity. So SI unit of weight is kg meter per second square, या you can say Newton as force, SI unit of force और weight दोनों एक ही है। ओके, so next it is a vector quantity, okay, as it has magnitude as well as direction डाउनवर्ड है अर्थ की तरफ। वेट ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट बट इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मान लीजिए वेट हमारा 70 kg है यहाँ पर, तो मून पर अगर हम जाएं तो हमारा वेट 1/6 रह जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6, 1/6 हो जाएगा अर्थ की अपेक्षा, तो हमारा वेट वहाँ कम हो जाएगा। तो वेट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वो ग्रेविटी पे निर्भर करता है, लेकिन मास कम ज़्यादा नहीं होगा। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर ऑन द पोल देन वेट ऑन इक्वेटर, एज g is more, it means acceleration due to gravity is more on pole than equator. Weight of object is measured by spring balance, ये spring balance से ही वेट को आप मेजर कर सकते हैं। ओके, सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट W ऑन मून पर वेट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून एट द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ ऑन अर्थ सरफेस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून विल बी इक्वल टू द 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ओके, 1/6 ही रह जाता है। सो weight of object on moon will be 1/6 the weight of object on earth. This formula is very useful, जैसे देखते हैं। ओके, ये लिखा हुआ है। ओके, सो फॉर एग्जांपल वेट ऑफ अ 70 kg astronaut on moon will be, जो 70 kg का वेट है वो मून पर कितना होगा? इट इज नियरली 114 पॉइंट समथिंग न्यूटन। और अगर अर्थ पर कहें तो उस 70 kg का वेट कितना होगा? ये होगा m इंटू जी। अर्थ पर g मान लीजिए 70 kg मास हो गया और g की वैल्यू कितनी हो गई? 9.8, मान लीजिए 10 के आसपास, तो ये करीब 668 न्यूटन हो जाएगा। 600 कितना हो गया? 770, यस 86 इतने के बराबर, या 700 न्यूटन के आसपास होगा जो वेट उस आदमी का। वो मून पर 114 ही रह जाएगा, मतलब वेट कम हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।